Good morning, everyone. Yesterday we discussed 3 points. We already discussed. कौन से 3 points हम discuss कर चुके हैं? Preparation of soil, right? Preparation of soil, then selection and sowing of seeds. Then third is the replenishment of the nutrients in the soil. These we discussed. Okay, these 3 points we discussed. Now the fourth point, that is the irrigation. What do you mean by irrigation? अब उनको पानी चाहिए, ठीक है? So what is irrigation? What do you mean by the irrigation? That is the supply of the water. Write down the supply of water to the crops, the supply of water to crops at regular interval other than regular interval, ठीक है? Regular interval पे other source than the rain के अलावा जो other sources हैं, you have to give the water, the supply of water to the crops at regular interval, ठीक है? By or through different sources other than rain. बारिश के अलावा different ways use करना to give water to the crops, that is called irrigation. ठीक है? अब ये तो होगी इसकी definition. Why is irrigation या why water is important या why irrigation is important to the plants? पानी क्यों जरूरी है पौधों के लिए? Why irrigation is important, right? Why irrigation is important? क्यों जरूरी है पौधों के लिए कि उनको पानी देना चाहिए? क्यों जरूरी है? Who will tell why plants need water? Yes, Pulkit, unmute. Ma'am, to live, to grow. Okay. Ma'am, they need water, sunlight, and other So that means we will other raw write down. materials to perform photosynthesis. That means we will write first. We can write photosynthesis वाला point लिखना है. पहले वो लिख लो कि why it is essential. पहला point हो गया essential for carrying out different लिखना है. Carrying out the process of photosynthesis. Carrying out the process of photosynthesis. Yes, this is the first point. Any other? Who will tell the other point? Ma'am, to grow. For growth and development. For plants growth. Ma'am, to live. Ma'am, if they will not get water, they will, ma'am, dry and. They will dry, right? Yes, any other? Any other student? Yes, Jayant, unmute yourself. And from water they get nutrition. Nutritions they get. दोबारा बोलो. And they get nutritions from water. Yes, they can nutrients because the water will absorb all the nutrients and the minerals from the soil and give it to the different parts of the plant. So we can write down this third point. Okay, it is absorbed. Water is absorbed by roots. So along with water, लिख सकते हो पूरा. Water is absorbed by roots. So with water, minerals and fertilizers
मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो अगर पानी के साथ जो मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स है आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. Yes, any other point? हाँ जी प्रबल, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, water also protects the crop from both frost and hot air currents. What is frost? Again you read from the book. Again you read from the book. Prabal, I told, Yes, ma'am. try to frame the sentences on your own. Write down जो point प्रबल ने बोला है. We can say it helps in the process of transpiration also. क्योंकि transpiration अगर पानी लेगा, loss of water होगा, तो water will be absorbed more water will be absorbed. ठीक है. It ये भी कह सकते हैं, या इसी point के साथ पहले next लिख सकते हैं. It also like इसमें क्या होगा, dissolve nutrients and transported to all parts of the plant. Water क्या करता है? It dissolves all nutrients and transported to different parts of plant. ठीक है जी. इसके अलावा क्या अभी प्रबल ने बोला कि हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट्स. दैट मींस अब ये पानी जब एब्जॉर्ब करा, मिनरल्स गए. यस स्वरित, yes स्वरित, अनम्यूट योरसेल्फ. Ma'am, it help to make the root stronger. Okay, we can write. ठीक है, we can write it helps in the process of transpiration. ठीक है, अगर transpiration हो रही है तो that means as Prabal said कि it also protect the crop from the hot air currents. बाहर से it protects the plant from hot air currents. बाहर जो हवाएं गर्म है या कुछ है, गर्मी है. नाउ दीज डेज समर्स आर गोइंग ऑन. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इफ द ट्रांसपीरेशन अकर तो प्लांट्स कैन सर्वाइव हॉट एयर करंट्स, राइट. अदर पॉइंट वी कैन राइट, इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड. इट हेल्प्स इन द germination of seeds. Ma'am, it provides moisture to the crop. It provides moisture. We can write for this purpose irrigation is important. ये हो गया हमारा point, है ना. अब irrigation आप कह रहे हो कि water is important. क्या हम, अच्छा हम अब अपनी बात करें, हम सभी एक जैसा पानी पीते हैं. हमारे घर में अगर हम ऑब्जर्व करें, कोई बहुत पानी पीता है, कोई कम पीता है. हर किसी की अपनी टेंडेंसी है ना. इन द सेम वे क्रॉप्स, 7th क्लास में यू रेड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल. सैंडी, क्लेई, लोमी. यू रेड. ठीक है, सैंडी में से पानी निकल जाता है. क्लेई जो होल्ड करती है पानी को बहुत ज्यादा. लोमी मिक्सचर ऑफ द सैंडी एज वेल एज क्लेई. तो दैट मीन्स कितनी मिट्टी पानी को पकड़ सकती है. अगर मैंने घर में एक पोट मतलब प्लांट लगाया पोट में और मैंने सैंडी सॉइल डाल दी, मैंने पानी डाला, वो सारा ही पानी नीचे चला गया, है ना. अगर वो लोमी सॉइल होगी तो वो पानी की कैपेसिटी को रोक के रखेगी. दैट मीन्स इरिगेशन डिपेंड करती है. अगर अब आजकल बारिश हो रही है ना, हमारे घरों में लोमी सॉइल है, मिक्सचर ऑफ द सैंडी एज वेल एज द क्ले. तो व्हाट वी आर डूइंग, अगर वहां पे वो पानी आ रहा है, मिट्टी क्या होती है, गीली, हम और पानी नहीं देते. अगर हम और पानी दे देंगे तो पौधे खराब हो जाएंगे. अब इन द सेम वे दैट मीन्स इरिगेशन जो है कि हाउ मच वाटर वी विल गिव टू द क्रॉप्स, इट डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर्स. कितना पानी पौधों को देना है, इट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स. ये जितना भी हमने देना है कि इरिगेशन है, दैट इज डिपेंड अपॉन irrigation depend upon
3 फैक्टर्स। अब ये 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैंने क्रॉप कौन सी लगाई है। अगर इफ आई एम सोइंग राइस क्रॉप, तो आप सबको पता है राइस को पानी के अंदर सबमर्ज मतलब डाल के रखना पड़ता है ना, पैडी क्रॉप। दैट मीन्स नेचर ऑफ सॉइल और नेचर ऑफ क्रॉप। सबसे पहले हो गया नेचर ऑफ क्रॉप। सेकंड हो गया नेचर ऑफ सॉइल, कि आप मिट्टी कौन सी ले रहे हो, ठीक है। थर्ड हो गया सीजन, ठीक है। पहला हो गया नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ सॉइल। थर्ड हो गया सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रोन, सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रोन। मतलब इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है हाउ मच वाटर वी विल गिव इट द प्लांट्स और द क्रॉप। क्रॉप कैसी है, मिट्टी कैसी है, सीजन कौन सा है। If we are having a summer season, then we have to see पानी ज्यादा है, विंटर है पानी कम, that depend upon। अब ये हमारे पास हो गया कि by these 3 factor will decide how much water we will give it to the plants। But what are the different ways to give the plants to the water? अब कितने हमारे पास ways हैं जिनसे हम water दे सकते हैं plants को। Write down the next sources. Write down the next point, sources of irrigation. Sources of irrigation. अब now sources of irrigation, कौन से तरीके हैं, कौन से ways हैं? These are broadly divided into 2. Traditional method, जो पुराने टाइम में लोग यूज करते थे, traditional मेथड, एंड यहां पे आ गया मॉडर्न मेथड। ठीक है। अब अंडर दिस ट्रेडिशनल मेथड, पुराने टाइम पे लोग कैसे पानी देते थे, फार्मर्स कैसे पानी देते थे? देयर आर द 4 वेज। different 4 ways. Number 1, moat, that is also called pulley system. Moat, pulley system, right? Then there is a chain pump. Then there is a dhekli. Then there is a rahat. These are the different ways. In traditional method, we can divide into 4 different ways. कौन कौन से ये 4 different ways हैं? That is the moat system, that is pulley system, chain pump, dhekli and rahat. अब ये है क्या? ठीक है। In exam, they will not ask you to draw the diagrams of this, but they can ask you to identify which method is this. ठीक है। Sharing the screen, have a look. Yes, these are the 4 ways. Have a look. This is moat, जिसको हम pulley system कहते हैं. Pulley is there. ठीक है। In 6th class you read about the pulleys, कि वो ठीक है pulley system is there. ठीक है। Is it clear? Moat system is clear. That is called the pulley system. Now see the recognition is there. See, this is chain pump. This is chain pump. ये chain के साथ चल रहा है, chain के साथ इसको बांधा हुआ. This is chain pump, like it is rotating and the water is given to the crop. Dhekli. Dhekli में we are using the wood, stone, heavy weight. एक साइड पे हम heavy weight रख देते हैं, उसको नीचे करते हैं, heavy weight बांध दिया, then ऊपर आ जाता है bucket. This is the dhekli. And last one is, that is the rahat with the help of the bull or the animals. This is called rahat. So you have to recognize all these specs. Rahat is done with the help of the, या rahat को हम lever system कहते हैं. It is done with the help of the bull or the animal. Dhekli wooden हम रखते हैं उसमें, sorry heavy weight रखते हैं. Chain pump and moat.
यानी कि डेकली को सॉरी राहट को हम लीवर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? दीज आर, इनको हमने बहुत डिटेल में नहीं करना। दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच द वाटर इज गिवन टू द प्लांट्स। So these are the different ways. Mode, that is pulley system, chain pump, dhekli, rahat. Rohit, are you playing game? I am not able to understand why all of you are doing this. Anyhow, this is the traditional method. Clear? This is traditional method. Right? Now, modern method. अब ट्रेडिशनल मेथड, अगर हम पानी दे रहे थे पौधों को, अब हमें मॉडर्न मेथड की क्या जरूरत है? पानी देने के ये भी वेज थे, हम ये सारी चीजों को पानी दे रहे हैं। प्रबल, क्या जरूरत है? Why we have to shift from the traditional to the modern method? What is the need to shifting from traditional method to the, unmute karo? Ma'am, because ma'am we are now modern, so we have to use modern methods. We are modern. Okay, Pulkit, unmute yourself. Ma'am, to reduce the work done by humans and animals. Yes, yes, अनवे, अनवे आपने भी हैंड खड़ा रेस करा था। हाँ जी अनवे, अनवे अनम्यूट करो बच्चे। It makes the work easier. It makes the work easier. Very good. It's not like that, Prabal, कि we are living in the modern, so we have to use. ठीक है? Why we are shifting? Why you are shifting? हमें रिटर्न करना कहाँ? कंप्यूटर पे टाइप. That is save our time, save labor. In the same way, these traditional method is shifting to the modern method. Why it is shifting to the modern method? As Anve told, it makes easier. Pulkit say labor, money, time, everything will be beneficial. So that's why we are shifting from the traditional method to the modern method. अभी एक example देती हूँ. Now I am going to explain the modern method. Modern method is, उसी के नीचे आप लिख लो पहले, जहां आपने लिखा हुआ है ना मॉडर्न मेथड, उसके नीचे लिख लो इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम एंड सेकेंड इज स्प्रिंकलर. राइट प्रबल जी, एज यू सेड कि मॉडर्न. अब मुझे बताओ, इफ आई विल टेल यू टू give water to the whole field, cricket ground, what you will do? आप पाइप लेके डालने जाओगे? What you will do? What we will do? Cricket ground को पानी देना. What you will use? Don't see book. हाँ जी पुलकित, unmute yourself. मैम स्प्रिंकलर वो मैम ग्राउंड के नीचे से थोड़ी सी मैम वो पाइप आती है स्टील की, उसमें से मैम पानी स्प्रिंकल होता है पूरे ग्लास में. नाइस. एक नोजल आती है, मतलब एक पॉइंट होता है ऐसे जो जमीन के नीचे होता है, और जब हमने उसको ऑन करते हैं वो जमीन के जो ऊपर ऐसे कैप होता है उसको हटा के वो नोजल बाहर आती है. नोजल में होल्स होते हैं और वो पानी को यूनिफॉर्मली सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. एक ही टाइम पे सारी फील्ड में हम पानी डाल सकते हैं. हमने अलग अलग स्प्रिंकलर्स लगाए हैं फील्ड में, एंड वी कैन गिव द वाटर टू द होल क्रिकेट ग्राउंड, होल फुटबॉल, wherever you want to give the water, we can give. Right? Other method is drip irrigation. Drip irrigation means like suppose this is the pipe. ये एक पाइप है ना, मैंने इधर भी. अब इस पाइप में होल्स करे हुए हैं 4. मैंने इस पाइप में पानी डाला, यहाँ से क्या होगा? एक पौधे के ऊपर ड्रिप, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर मैंने वो होल्स करे हुए हैं. सो व्हेन आई एम गिविंग द वाटर टू द पाइप या व्हेन आई एम pouring the water to the pipe, it will drip to the different parts, different ports, है ना. उससे फायदा क्या है? पानी वेस्ट नहीं हो रहा. ठीक है, जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है वहां पे पानी वेस्ट नहीं होता. ठीक है, सबको प्रॉपरली मिल जाता है.
एक ही टाइम पे नेचुरली मेरी लेबर कम हो गई, मैंने ऊपर से पानी पोर किया, पूरी पाइप लगी है, एक ही टाइम पे पानी जो है वो सारे गमलों को, सारे पोट्स को चला गया। सो दिस इज द, ये देखो, ये भी देख ही लो, दिस इज स्प्रिंकलर। नोजल बाहर लगी होती है एंड इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट प्लांट्स, एंड दिस इज द ड्रिप इरिगेशन। ये देखो, ये शो नहीं हो रही, ध्यान से देखो, ये पाइप है, दिस इज पाइप दे आर शोइंग, इसका ये एक नोजल, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, हर पौधे के पास उसका एक पॉइंट है, दिस इज ड्रिप इरिगेशन। हम जमीन पे भी कर सकते हैं, हम ऊपर से भी डाल सकते हैं। सो राइट डाउन ड्रिप इरिगेशन क्या है, राइट डाउन द ड्रिप इरिगेशन, होल्स इन द पाइप, होल्स इन पाइप, पाइप के बीच में जो होल्स हैं, दे अलो वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप ड्रिप करके पानी आता है, ठीक है, ठीक है। जस्ट एज द पोजीशन ऑफ रूट, just as the position of roots, वो सीधी उसी हिसाब से बनाया होता है, सो दैट आराम से पानी जो है रूट्स में चला जाए विदाउट वेस्टिंग, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, मैंने अभी आपको इसके बेनिफिट बताए, वाटर इज नॉट वेस्टेड, पानी वेस्ट नहीं होता, एंड इट इज द बोन इन दोज रीजन वेयर लेस वाटर इज अवेलेबल। मतलब 2 बेनिफिट्स आर देयर, इसके 2 बेनिफिट हैं, क्या है इसके 2 बेनिफिट, वाटर इज नॉट वेस्टेड, वाटर इज राइट, सेकेंड पॉइंट हो गया बोन, इट इज अ बोन, राइट, बोन मतलब बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट, इट इज अ बोन इन द रीजन्स, बोन इन रीजन्स वेयर वाटर इज लेस अवेलेबल, जहां पानी आपको बहुत कम मिलता है, वहां पे ये इसके बेनिफिट्स हो गए। दिस इज द ड्रिप इरिगेशन, इज इट क्लियर बेटे, दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर में क्या है, वाटर इज गिवन, ठीक है, थ्रू अ स्प्रिंकलर, प्रबल वेट, वाटर इज sprayed on the plants, water is sprayed कर लो, given कर लो, water is sprayed on the plants through sprinkler, ठीक है जी। ऐसे एक नोजल होएगी, ठीक है, यहाँ पे होल्स होंगे, ऐसे ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिफॉर्मली, दैट इज द स्प्रिंकलर। द परपेंडिकुलर पाइप, इट इज सॉर्ट ऑफ अ परपेंडिकुलर, एक पाइप कह लो, छोटे से नोजल्स कह लो, ठीक है, हैविंग अ रोटेटिंग नोजल्स होते हैं जो कि टॉप पे ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर, बेनिफिट्स दोनों के सेम हो सकते हैं, सेव्स द टाइम है, एज वेल एज यू कैन से कि वाटर जहाँ पे नहीं होता वी कैन यूज, बट स्प्रिंकलर में हम पानी ज्यादा जाता है। यस प्रबल, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रबल दोबारा अनम्यूट करो। यस मैम, मैम एक बारी मैम ड्रिप इरिगेशन मैम रिपीट कर दो मैम, ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है ब्लैक बोर्ड मैम, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन मैम। यस, आप देखो, इज इट क्लियर, राइट, होल्स इन मैम द नो पाइप, मैम, मेरी तरफ मैम ऐसे नेटवर्क होल्स इन द प्रॉब्लम है। पाइप, पाइप में ऐसे, ये देखो ना, ड्रिप इरिगेशन में ऐसे ये पाइप है लाइक दिस, ठीक है। अब ये पाइप में यहाँ पे होल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पानी क्या यहाँ से ड्रिप कर गया, यहाँ से ऐसे पानी, वाटर जो है दैट इज कम बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द रूट्स, रूट्स के ऊपर ही, मतलब उसी पौधे के ऊपर डायरेक्टली चला जाता है, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन। एंड स्प्रिंकलर,
ठीक है, sprayed on the plants through sprinkler. Sprinkler क्या होता है? One kind of the nozzle, जो एक नोजल होती है जिसको हम ओपन करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली सारी तरफ पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है. मैम आपने सेकंड पॉइंट बेनिफिट्स का क्या लिखा It है? is a bone in the region where water is less available. It is the bone in the regions where water is less available. It is the bone in the region where water is less available. So these are the comes under the irrigation. अब irrigation भी हो गई. पहला point था preparation of soil. Second, selection and sowing of seed. Third, replenishment of nutrients in the soil. Fourth, irrigation. Now the fifth point. ठीक है? Now fifth point. Yes, Jayant. Unmute yourself, Jayant. Ma'am, I want to ask, ma'am, boom in regions means, ma'am. Sorry. Boom in Boon. regions. Boon, 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 boon. Boon and bane बोलते हैं ना? Advantages and disadvantages. Yes, ma'am. Boon advantage, boon and bane. ठीक है? Yes, चलिए, ma'am. अब हमारे पास 4 पॉइंट्स भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम लोग उसको पानी भी दे दिया. अब नेचुरली पानी हो गया, सारा कुछ आपने उसको दे दिया, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, ऑल थिंग्स यू हैड गिवन. नाउ व्हाट इज द टाइम? नाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप. सो द फिफ्थ पॉइंट इज crop protection. Crop protection. Now we have to protect our crops. ठीक है जी. अब हम कैसे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं? मतलब किससे प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब वीड्स क्या है? अब क्रॉप्स को हमें प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना? जैसे हम अपनी बात करें, हमें खाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन टाइम टू टाइम पे हमें मेडिकेशन करनी पड़ती है. लाइक मेडिसिन, हम बच्चों को मेडिसिन दिलवाते हैं, छोटे बच्चों को, सारा कुछ मिल गया. वी हैव टू प्रोटेक्ट देम. नाउ इन द सेम वे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम वीड्स. व्हाट इज वीड? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स. Weeds are the unwanted plant which grow along with the main crop. Weeds क्या है? Unwanted plants grow along with the main crop. Along with the main crop. मेन क्रॉप के साथ ही एक और पौधे लग जाते हैं जो उसके न्यूट्रिएंट्स को दे विल एब्सॉर्ब, दैट आर कॉल्ड द वीड्स. ठीक है? रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिसाइड्स. रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिसाइड्स, या वीडिंग कह सकते हो, वीडिंग. Is it clear? ठीक है? That is called weeding. अब why it is necessary to remove the weeds? अब हमारी मेन एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, why it is important to remove weeds? पौधे लगे हैं, पौधों के साथ, तो क्यों हम उनको रिमूव करें? Why it is necessary? क्यों करेंगे? Why we will remove those one? Yes, Bani, unmute. क्योंकि मैम जो जिस प्लांट के साथ वीड्स लगे हैं तो वो प्लांट्स जो खराब हो जाएंगे. Yes, yes, Jayant. And they do not have proper nutrition. They don't have, not नहीं, have proper. नहीं, they will use the nutrients whatever we are given to the main field. They will use that one. हम जो न्यूट्रिएंट्स उनको दे रहे हैं, they will use that one. They will fight for the nutrition. मतलब एक ही जगह पे when the unwanted plants are there, they will also use, they will fight with the other plants to get the nutrients. ठीक है? For the sunlight, हर चीज के लिए उनमें fight होगी. So that's why we have to remove it. ठीक है?
राइट डाउन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन लिख सकते हो. व्हाई नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स. व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव इट या रिमूव वीड्स. क्यों जरूरी है. पहला पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं हम. क्यों जरूरी है हमें अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना. ठीक है. दे ऑल्सो कंज्यूम ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दे विल ऑल्सो कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स. या ग्रेट अमाउंट ऑफ लिखना है, ग्रेट लिख लो, अदरवाइज यू कैन राइट न्यूट्रिएंट्स. ग्रेट amount of nutrients. ठीक है. fight for water, fight for sunlight. ठीक है. water, sunlight, इन सब के लिए ये सारी चीजें बीच में आके ऑब्स्टैकल बनेंगे. ठीक है. इवन स्पेस भी तंग करेंगे. मतलब दे विल ऑक्यूपाई द स्पेस एंड स्पेस. ठीक है. फिर कहीं कहीं पे जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड मतलब वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं. दे सम ऑफ द वीड्स है ना, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे दैट मे बी पॉइजनस. दैट मे बी poisonous for the plants as well as the animal. ठीक है. क्लियर है.